Pledge. I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Welcome to English grammar class. Today we will discuss our chapter number 7, tenses. We will discuss about the simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Now we will start from the present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, we have in positive form subject, has, have plus been and the present participle of the main verb and the rest of the predicate. In negative form, subject plus has, have plus not plus been plus present participate and the rest of the part of the predicate. In interrogative sentence, has, have come in first, then subject, then been, then present participate of the main verb, the rest of the predicate. We use the present perfect continuous tense to talk about an action that began in the past but in still continuing. हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसकी बात करते हैं, जो एक्शन बिगिन हुआ था पास्ट में बट अभी तक चल रहा होता है. नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, हैज़ अ रिसेंटली स्टॉप्ड एंड येट हैज़ सम इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, जो कि रिसेंटली अभी अभी स्टॉप हुआ हो और उसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, हमारे प्रेजेंट में. Some time makers are used with the present perfect continuous. They do not have a fixed spot in sentence. Some of these time makers are for, since, lately, how long, afternoon, morning, night, recently, etc. For example, क्या होता है, सम टाइम वहाँ पे मार्क नहीं होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, फिक्स स्पॉट इन अ सेंटेंस की कौन सी स्पॉट उसकी फिक्स हो रही है. एंड द नेक्स्ट वन, द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस आपको पता है उसमें क्या आता है, पॉजिटिव फॉर्म में क्या था, सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट. एंड नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट, डिड नॉट, इन्फिनिटी ऑफ द वर्ब and then rest of the predicate. Interrogative में did come first, then subject, then infinitive form of the verb, the rest of the predicate. We use the simple past tense to talk about an action that took place and was completed at a particular time in the past. तो simple past में क्या होता है, जो कि action की place लेता है और completed करता है अपना sentence को in a particular time में, इसको हम बोलते हैं past tense. The simple past tense is also used to talk about past habits and states. किसके बारे में बात होती है, past के habits के बारे में and states के बारे में. Here are the example. We used to travel a lot till about a couple of years ago. Now we travel only twice a year. नेक्स्ट हमारा क्या है, we use did, did not, didn't plus infinitive instead of the simple past tense from the verb in negative sentence. उसमें क्या यूज़ करना है नेगेटिव में, did, did not and the infinitive verbs. And नेक्स्ट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पॉजिटिव फॉर्म में क्या आएगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट. नेगेटिव फॉर्म में क्या आएगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. इसमें क्या आता है, प्रेजेंट वर्ब आती है और हमारे इसमें क्या आता था, पास्ट एंड इन्फिनिटिव. ठीक है, दीज आर द डिफरेंस ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड द सिंपल पास्ट. इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब स्टार्टिंग में आएगा, देन सब्जेक्ट, देन द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब एंड देन द रेस्ट ऑफ द. वी यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. तो हम किस में यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस में था एंड अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया था पास्ट के बारे में. कंपैरिजन सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस. वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट. तो सिंपल पास्ट किसके बारे में होता है, टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द
जो कि हमारे पास्ट में हो चुका था। वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट एंड वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। तो क्या इसमें टॉक अबाउट किसके कौन से एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट में हुआ होता है, और इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन जो दूसरे एक्शन द्वारा इंटरप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी फिनिश्ड लंच एट 1:30 PM, एक्शन इन द सिंपल पास्ट। तो उसने क्या बोला, सिंपल पास्ट में था क्योंकि उसने फिनिश्ड कर लिया था लंच 1:30 पे। वी आर फिनिशिंग लंच व्हेन शी केम इन, क्या हो गया, उसने बोला कि हम लंच फिनिश कर रहे थे जब वो आई। एक्शन इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड इंटरप्टेड बाय एक्शन इन द सिंपल पास्ट। वी यूज व्हेन, as and while to concept the past continuous and simple past in a sentence। तो हम ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, रिमेंबर यू हैव ऑलरेडी स्टडी द सिमिलर एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द सिंपल पास्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में बारे में स्टडी कर लिया। हाउएवर लेट अस डू अ क्विक रिकैप। तो इसके लिए हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। वी कैन यूज़ बोथ टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। तो हम उसके बारे में बात करें जो दोनों एक्शंस एक क्या करते हैं, किसकी जगह लेते हैं, पास्ट की। द डिफरेंस हाउएवर, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट सिंपल पास्ट से यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। तो सिंपल पास्ट में उस एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमारा पर्टिकुलर टाइम में फिनिश हुआ होता है पास्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड सम टाइम इन द पास्ट। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पे सम टाइम में, ठीक है। टू पुट एम्फेसिस ऑन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक्शन। तो एम्फेसिस को पुट करना है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ द टाइम पे। टू पुट एम्फेसिस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपन। तो इसमें क्या है कि उस टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था। एग्जाम्पल, आई बॉट दिस लैपटॉप येस्टरडे, आई हैव बॉट दिस लैपटॉप। तो इसमें क्या था, उसने कब बाय किया, येस्टरडे। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, इसमें उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि वो कब ये एक्शन हुआ था। अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। शी इज ए रेनोवेन dancer. She was performed at various cultural festival around the globe. He had just come and just came, ठीक है। These are the difference. Have you watched The Lion King? No, I have never watched, didn't watch that film. The first time I have met him was at the sister's engagement ceremony. Here I have bought all the DVDs I had of old classic. I love watching these films. नेक्स्ट हमारा क्या है, द पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट सिंपल फॉर्म में क्या था, सब्जेक्ट हैड प्लस पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब एंड देन द रेस्ट ऑफ। और नेगेटिव में हैड नॉट आ जाएगा एंड इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में हैड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन उसकी वर्ब आएगी, देन द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। तो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं जब एक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है बिफोर गिवन मोमेंट इन द पास्ट, जो कि हमारे उसके पहले जो कि हमें टाइम दिया जाता है। द गेस्ट इज टर्न अप आफ्टर वी हैड कट द केक। तारा एंड जिया कम होम आफ्टर एवरीवन हैड गॉन टू बेड। तो उसमें क्या है कि जब वो काम हो चुका था। वो यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस विद वर्ड लाइक सपोज, वांट, होप, एक्सेप्ट, थिंक एक्सेट्रा टू सजेस्ट एन एक्सपेक्टेड एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस इन वर्ड्स के दोबारा यूज़ करते हैं जहाँ पे सजेस्टेड होता है एक्सपेक्टेड एक्शन डिड नॉट टेक, उसकी प्लेस नहीं ले सकता है। वी हैड गॉन देयर होपिंग ही वुड टर्न अप। आई हैड थॉट ऑफ गोइंग टू नैनीताल बट देन आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अंटिल नाउ। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चा।